my previous video, we have studied about the electrostatic force. So, what is the electrostatic force? A force exerted between two static charges. So, the force F is equal to K Q1 Q2 upon R square, where K is the constant having value 1 upon 4 pi epsilon. Epsilon is the permittivity. We put the value of epsilon. Epsilon is equal to epsilon naught and epsilon r. So the formula of the K will be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught epsilon r. Okay. Now this is the Coulomb's law. F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught epsilon r Q1 Q2 upon r square, where epsilon naught is the permittivity of free space, air or vacuum, which have the value 8.854 into 10 to power minus 12 Coulomb square upon Newton meter square. Epsilon r is the permittivity of medium. So हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ चुके हैं, जो कि F बराबर जो होती है वैल्यू वो होती है हमारी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. K क्या है हमारा कांस्टेंट है, जिसकी की वैल्यू कितनी है हमारी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, जो कि एप्सिलॉन किसके बराबर होता है हमारा एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन R. तो फॉर्मूला हो जाएगा F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. एप्सिलॉन नॉट क्या होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर. और एप्सिलॉन आर क्या होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम. आई हैव एक्सप्लेन ऑल द टॉपिक्स अप टू कूलम्स लॉ इन माय प्रीवियस वीडियो पार्ट 1. नाउ आई विल एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. The electrostatic force formula F is equal to K Q1 Q2 upon R square. If we put the value of K, F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught epsilon R Q1 Q2 upon R. Conditions. First condition, when both static charge are placed in air at a distance R. I have shown in the diagram. Formula F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R. We know relative permittivity for air epsilon r will be equal to value 1. Second condition, when both static charges are placed in a medium. I have shown you in the diagram. Formula F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught epsilon r Q1 Q2 upon R square. If we put the charges in water, epsilon r value will be 80. Third condition, when charges are placed partially medium, one charge is in another medium and another charge is in another medium. So charge Q1 is in air, charge Q2 is in another medium like water of thickness T. So this distance R will be affected and formula will be F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R minus T plus T under root epsilon R whole square. हम प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तक पढ़ चुके हैं, जो फॉर्मूला आता है हमारा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कंडीशंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. कंडीशन नंबर 1, बोथ चार्ज आर प्लेस्ड इन एयर. अगर हमने दोनों चार्जों को एयर में रख दिया है तब फॉर्मूला होता है हमारा F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. एप्सिलॉन R की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर हो जाएगी. दूसरी कंडीशन, जब दोनों चार्जों को हम किसी मीडियम में रख देते हैं, देखिए डायग्राम से दिखा रखा है, तो फॉर्मूला है हमारा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R. अगर हमने वाटर में रखा एप्सिलॉन r की वैल्यू 80 हो जाएगी. थर्ड कंडीशन, पार्शियली मीडियम आंशिक माध्यम. F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R माइनस T प्लस T अंडर रूट एप्सिलॉन R स्क्वायर. ठीक है, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम.
Next topic, dielectric constant. Dielectric constant represented by the symbol epsilon r or k. For the air, Coulomb's force formula F equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. This is represented by equation 1. For the medium, Coulomb's force F equal to 1 upon 4 pi epsilon naught epsilon r Q1 Q2 upon R square. With the help of equation 1 and 2, we get the value of epsilon r or k. F air upon F medium. डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम एप्सिलॉन आर या के से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। एयर के लिए कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। माध्यम के लिए F मीडियम के लिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दोनों इक्वेशनों की सहायता से एप्सिलॉन r की वैल्यू आती है F एयर अपॉन F मीडियम। नेक्स्ट पॉइंट, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। There are two conditions. One, when same nature charge are placed. We know that when same nature charge are placed, there will be always repulsion force. So Q1, Q2 charge plus plus minus minus. The force on charge Q1 by Q2 F12. Direction from Q2 to Q1. Force on charge Q2 by Q1 F21. Direction from 1 to 2. So this is the direction representation. R21 and R12 both are opposite. So force on Q1 is represented F12 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square R21. Force on Q2 F21 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square R12. R21 and R12 direction representation. Second condition, opposite nature charge are placed. Opposite nature charge are placed, there will be always a attraction force. So Q1 and Q2, this plus, this minus, this minus, this plus. So the force on charge Q1 by the charge Q2 F12, direction R12. Force on charge Q2 by Q1 F12 and direction from which direction? From R2. So the representation force on Q1 F12 is equal to 1 upon 4 pi epsilon Q1 Q2 upon R square R12 means F12 direction R12. Force on Q2 F21 is equal to 1 upon 4 pi epsilon Q1 Q2 upon R square R21. F21 direction R22. So this is the representation of the Coulomb's law in vector form. हमें कूलम्ब लॉ को वेक्टर फॉर्म में समझना है तो दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है कि जब दो समान नेचर के चार्ज रखे हुए हैं, तो जैसे Q1 एंड Q2 धनात्मक हैं दोनों या दोनों ऋणात्मक है, तो उनके बीच में हमेशा प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो Q1 पर Q2 के द्वारा लगाया गया बल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? प्रतिकर्षण बल लगेगा तो बाहर की तरफ लगेगा F12। डायरेक्शन Q2 चार्ज लगा रहा है Q1 पर, तो डायरेक्शन हो जाएगी R2। Q2 आवेश पर Q1 के द्वारा लगाया गया बल प्रतिकर्षण बल है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? F21। फोर्स इधर होगा और डायरेक्शन क्या हो जाएगी? R12। लिखेंगे कैसे? Q1 आवेश पर लगने वाला बल F12 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R21। Q2 आवेश पर लगने वाला बल F21 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R12। R21 और R12 क्या है? दिशा को प्रदर्शित करने वाले। दिशा प्रदर्शित हो रही है, लेकिन देखिए F12 इधर है तो R12 इधर है और F21 इधर है तो R21 इधर है, तो दोनों अपोजिट हैं। दूसरी कंडीशन आती है जब दो विपरीत आवेश रखे हुए हों। तो जब दो विपरीत आवेश लगते हैं, रखे रहते हैं, तो उनके बीच में क्या लगता है? हमेशा आकर्षण बल लगता है। तो देखिए Q1 Q2 आवेश है, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है। जब ये ऋणात्मक है तो मान लीजिए धनात्मक है। तो देखिए Q1 पर Q2 के द्वारा लगने वाला बल आकर्षण बल लगेगा F12। किधर लगेगा? इधर R12। Q2 पर Q1 के द्वारा लगने वाला बल F21 किधर लगेगी? डायरेक्शन क्या हो जाएगी?
तो Q1 पर लगने वाला बल को कैसे प्रदर्शित करेंगे? F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R12। Q2 अब इस पर लगने वाला बल F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R21। तो R12 और R21 दिशा को प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए जिधर F12 लग रहा है उधर ही हमारी R12 और जिधर F21 लग रहा है उधर हमारी R21। तो ये चीजें क्लियर हो जाती है इसमें कि ये जो अट्रैक्शन जो यानी आकर्षण जो बल होता है वो डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, फाइन 1 कूलम। We know about the Coulomb's formula, which is F is equal to K Q1 Q2 upon R square. We put the value of all the constant K, Q1, Q2 and R. K value 9 into 10 to power 9, Q1 and Q2 1 coulomb, R 1 meter. So put all the value in this formula, we get value of F 9 into 10 to power 9 meter. So the 1 coulomb definition is when two charge of same magnitude and same nature. Same nature means both charge may be positive or both charge may be negative. So they put at a distance of 1 meter a force of 9 into 10 to power 9 Newton exert between them. This is the definition of 1 coulomb. Another point, unit of the charge. System, small unit, larger unit. Charge unit in MKS system, smaller unit Franklin, larger unit Coulomb. In CGS system, charge unit, smaller unit F Coulomb, larger unit Stat Coulomb. हमें 1 कूलम को डिफाइन करना है। हम 1 कूलम को डिफाइन करने से पहले हमारे को कूलम्स के नियम के बारे में मालूम है। क्या होता है? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर हम सभी कांस्टेंट K Q1 Q2 और अगर R की वैल्यू को पुट करें, हमने मान लिया है Q1 Q2 की वैल्यू 1 कूलम, R की वैल्यू 1 मीटर। अगर दो समान आवेश, समान मात्रा के आवेश एक दूसरे से अगर 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हों तो उनके बीच में लगने वाला जो बल है वो 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन के बराबर होगा। तब हम कह सकते हैं कि ये 1 कूलम है। यूनिट ऑफ द चार्ज, चार्ज का मात्रक। देखिए दो सिस्टम होते हैं, एमकेएस और सीजीएस। एक स्मॉल यूनिट के बारे में समझेंगे, बड़ी यूनिट के बारे में समझेंगे। तो एमकेएस सिस्टम में चार्ज की छोटी यूनिट होती है वो फ्रैंकलिन होती है और बड़ी यूनिट होती है कूलम। सीजीएस सिस्टम में चार्ज की छोटी यूनिट जो होती है, छोटा मात्रक जो होता है वो होता है एव कूलम और बड़ा जो मात्रक होता है वो होता है स्टेट कूलम। पॉइंट, force between multiple of charges. Let us consider charge Q1, Q2, Q3 and so on are placed in air and we want to calculate the force due to multiple of charges on test charge Q1. From charge Q1 distance R1, from charge Q2 distance R2, from charge Q3 distance R3 and so on. So the force due to charge Q1 on test charge Q0 is F1. Force due to charge Q2 on test charge Q0 is F2. Force due to charge Q3 on test charge Q0 is F3 and so on. So the force on the charge Q0 due to Q1, F1 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q0 upon R1 square. R1 is unit vector. Unit vector represents the direction. So the direction from charge Q1 to Q0. So this is the unit vector which represents the direction. Due to charge Q2, force on test charge Q0 1 upon 4 pi epsilon naught Q2 Q0 upon R2 square, R2 unit vector and so on. And force due to Qn charge on test charge Q0 is Fn is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Qn
Q naught upon Rn square Rn unit vector. So we add the total forces and we experience on test charge Q1. So total force F is equal to F1, F2, F3 and so on up to F1. We put all the value of F1, F2 and so on up to Fn and we get the result. So this is the force between multiple of charges. हम फोर्स को कैलकुलेट करेंगे भिन्न भिन्न आवेशों के द्वारा. हमारे पास Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन Qn चार्ज वायु में रखे हुए हैं और हम एक टेस्ट चार्ज Q0 पर Q1 के कारण लगने वाला बल, Q2 के कारण लगने वाला बल, Q3 के कारण लगने वाला बल एंड सो ऑन Qn के द्वारा लगने वाले बल की गणना करेंगे टेस्ट चार्ज Q0 पर. तो देखिए जब Q1 चार्ज लगाता है टेस्ट चार्ज Q0 पर तो फोर्स क्या है हमारा F1. Q2 लगाएगा टेस्ट चार्ज पर बल Q0 तो फोर्स हो जाएगा F2. Q3 चार्ज लगाएगा टेस्ट चार्ज Q0 पर तो फोर्स होगा F3 एंड सो ऑन. जब Qn चार्ज लगाएगा फोर्स Q0 पर तो फोर्स होगा Fn. हमने देखिए ड्यू टू Q1 के कारण F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 अपॉन R1 स्क्वायर. R1 क्या है यूनिट वेक्टर, ये दिशा को प्रदर्शित करेगा. ये हमारा जो फॉर्मूला आ रहा है कूलम्स लॉ की हेल्प से आ रहा है. Q2 चार्ज के कारण लगने वाला बल F2 तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q0 R2 स्क्वायर R2 यूनिट वेक्टर एंड सो ऑन. कहां तक चलेंगे Qn तक चलेंगे. Qn के द्वारा लगाया गया बल Fn इज इक्वल टू 1/4 पाई Qn Q0 अपॉन Rn स्क्वायर Rn यूनिट वेक्टर. जितने भी चार्ज हैं वायु में Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन अप टू Qn तक, उनके कारण टेस्ट चार्ज Q0 पर परिणामी बल की गणना करेंगे. तो Q सभी Q जितने भी लग रहे हैं Q1 Q2 Q3 के अप टू Qn तक, उनके कारण जो टोटल फोर्स है यानी F बराबर किसके हो जाएगा F1 F2 एंड सो ऑन अप टू Fn. हमने फोर्स किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, हमने एक डायरेक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट कर रखा है. सभी पे डायरेक्शन लगी हुई है तो सभी की वैल्यू F1 F2 Fn की देखिए फॉर्मूला क्या था हमारा F इज इक्वल टू F1 F2 अप टू Fn तक. इन सभी की वैल्यू को पुट करेंगे और हम एक सीरीज फाइंड कर लेंगे. तो इस तरीके से हम भिन्न भिन्न आवेशों के कारण किसी टेस्ट चार्ज पर लगने वाले बल की गणना करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड the region around a charge or space around a charge in which another charge feel attraction force or repulsion force. So this is a diagram. There is a charge capital Q is placed. There is a around the space. If we bring a charge Q nearby it, it may feel attraction force or it may feel repulsion force. So this region is known as the electric field. Next point is point charge, which is represented by the Q. Point charge is that charge which produce electric field. Test charge is represented by the Q naught or Q0. Test charge is that charge which experience forces etc. It's facetious charge. It does not experience or it does not affect to the other charge. It just feel. Next point, electric field intensity. Electric field intensity represented by the E direction vector. Electric field intensity E is equal to force per unit test charge. The unit of force Newton. Test charge unit is Coulomb. So the electric field intensity formula is E is equal to F upon Q naught and unit is Newton upon Coulomb. हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे. अगर कोई चार्ज हमारा कैपिटल Q रखा हुआ है मान लो और उसके आसपास कोई ना कोई एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि अगर हम किसी दूसरे आवेश को लेके आए तो वो या तो आकर्षण बल का अनुभव करे या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे,
तो उस चार्ज के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट चार्ज, जिसको कि हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंट चार्ज वो चार्ज होता है जो कि अपना प्रभाव दिखाता है। टेस्ट चार्ज क्यू नोट से प्रदर्शित करते हैं। टेस्ट चार्ज वह चार्ज होता है जो खुद पर अनुभव करता है, उसका खुद का कोई वजूद नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होती है, वो सिर्फ फोर्स महसूस कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, और जिसका आगे फॉर्मूला होता है, जिसका आगे सूत्र होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है फोर्स बल बटे टेस्ट चार्ज। और चार्ज का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, और बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, मात्रक रहेगा न्यूटन अपॉन कूलाम। ये हमारे कुछ पॉइंट थे जो हमने डिफाइन किए हैं। पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। What do we mean by the electric field line, electric line of forces? The path of unit positive charge move. The path of unit positive charge move is known as electric field line or electric line of forces. There are isolated single positive charge. You are watching. These are the electric field line. From positive charge, they start from positive charge and terminate at infinity. This is isolated single negative charge. The electric field line start from infinity and terminate at this charge. This is combined positive and negative charge. This is the combination of positive and negative charge. We know that the electric field line start from positive charge and terminate at negative charge. So we show the electric field line from positive to negative, because electric field line start from positive charge and terminate at negative. This is the electric field line. Electric field line from positive charge move away, and electric field line on negative charge terminate. So I think you are enjoying and like to me. हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स के बारे में समझना है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होते हैं कि जब कोई पॉजिटिव चार्ज जिस रास्ते से चल रहा होता है, जिस रास्ते को जा रहा होता है, वही पाथ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहलाता है या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहलाता है। यानी पॉजिटिव चार्ज का रास्ता, पॉजिटिव चार्ज जिधर जाएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उधर ही की ही डायरेक्शन में है। हमें मालूम है कि अगर कोई सिंगल अकेला कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलना शुरू होंगी बाहर की तरफ, और कहां जा रही है वो? इन्फिनिटी की तरफ जा रही होती है। अगर कोई सिंगल आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस पर टर्मिनेट हो रही है, यानी उस पर अंत हो रहा है उनका। तो कहां से आ रही है? कहीं ना कहीं इन्फिनिटी से आ रही है। और अगर कोई एक कंबाइंड हमारा कोई कॉम्बिनेशन है पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का, तो देखिए आपको मालूम है, हम यहां पर बता चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती हैं और कहां टर्मिनेट होती हैं? नेगेटिव पर होती हैं। तो पॉजिटिव से निकलती हैं, नेगेटिव पर टर्मिनेट हो जाती है। पॉजिटिव से निकलती हैं, नेगेटिव पर टर्मिनेट हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज and terminate at negative charge. I have shown in the diagram. Electric field line start from positive charge and terminate at negative charge. Second point, electric field line never form closed loop. You are seeing in this diagram. This is the positive charge, this is negative charge. Electric field line start from positive charge and terminate at negative charge. So it never form closed loop. Next point,
electric field line never intersect. You are seeing in this figure, there are two electric field line intersect each other. So we draw a tangent at this intersect point. There are two tangents, means it represents two directions, which is not possible. Next, electric field line never break. They start from positive charge and always terminate at negative charge. If they break, it means there are existence of the charges, negative charges. Next point, electric field lines are very close. They provide strong electric field. If electric field lines are far away, they provide weak electric field. Next point, tangent. A tangent drawn on electric field line give the direction of electric field. So these are the most important point. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के गुण, पहला पॉइंट है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विद्युत बल रेखाएं हमेशा धनात्मक आवेश से शुरू होती हैं और ऋणात्मक आवेश पर उनका अंत होता है। ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, इसमें धनात्मक से निकल रही हैं और ऋणात्मक पर आ रही हैं। इसका मतलब धनात्मक से निकलती हैं और ऋणात्मक पर आके अंत हो जाता है। दूसरा पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी बंद पाथ नहीं बनाती। देखिए, पॉजिटिव से निकल रही है, नेगेटिव पर खत्म हो रही है, पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव पर खत्म होती है, पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव पर खत्म हो जाती है। तो क्लोज्ड लूप नहीं बना रही है, इसका मतलब दोबारा से ऐसे नहीं आ रही। नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा, कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट पर अगर वो काटेंगी, अगर उस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो हमें दो टेंजेंट मिलेंगे, जो कि कभी भी संभव नहीं है। दूसरा पॉइंट है, विद्युत बल रेखाएं कभी भी टूटती नहीं है, धनात्मक से शुरू होती हैं, ऋणात्मक पर उनका अंत होता है। अगर वो बीच में टूटती हैं, बीच में अगर उनका ब्रेक होता है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वहां पर ऋण आवेश मौजूद है। अगला पॉइंट है, जितनी बल रेखाएं पास पास होंगी, हमको विद्युत क्षेत्र ज्यादा मिलेगा। जितनी विद्युत बल रेखाएं दूर दूर होंगी, उतना ही कम विद्युत क्षेत्र मिलेगा। अगला पॉइंट है हमारा टेंजेंट का। अगर हम विद्युत बल रेखाओं पर किसी पॉइंट पर अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करें, देखिए ये पॉइंट है हमारा, अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो जो टेंजेंट है वो विद्युत बल रेखाओं की दिशा के बारे में बताता है। तो ये हमारे पास काफी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। So this is a point charge Q and Q naught is the test charge. First I will explain you about the point charge. Point charge is represented by the symbol Q. Point charge is that charge which produce the effect, and test charge represented by the Q naught. Test charge is that charge which experience the effects. So consider charge Q and Q naught are placed at a distance r. We know that when two charges are placed, there is a electrostatic force exists between them. So the formula of electrostatic force is F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught epsilon r q1 q2 upon r square. This is the general formula of electrostatic force or Coulomb's law. These charges are placed in air. For air, relative permittivity will be 1.
So epsilon r value will be 1. So epsilon r value 1. So the formula will be F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. With the help of this formula, we put the value of the charges. So Q1 is nothing, Q2 is nothing. So Q1 is Q and Q naught replaced by the Q2. So put the value of Q1 as a Q and Q2 is Q naught. So we get the formula F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q naught upon R square. Here epsilon R is not present. Why? Because these charges are placed in air. For air, epsilon R value is 1. Now we want to calculate electric field intensity. Electric field intensity is force per unit test charge. This is the formula. E is equal to F upon Q naught. We put the value of F, force. So E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q naught upon R square. In denominator, Q naught is also by this electric field intensity formula. So we cut the value of Q naught to Q naught. So we get the formula of electric field intensity. E is equal to Q upon 4 pi epsilon naught R square. So this is the formula of electric field intensity. E is equal to Q upon 4 pi epsilon naught R square. हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जानेंगे। देखिए हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज दे रखा है और एक टेस्ट चार्ज। पॉइंट चार्ज वो चार्ज होता है जो कि अपना प्रभाव दिखाता है। टेस्ट चार्ज वो चार्ज होता है जो कि प्रभावों को अनुभव करता है। तो माना कि पॉइंट चार्ज Q और टेस्ट चार्ज Q नोट एक दूसरे से R दूरी पर रखे हुए हैं। जब दो चार्ज होते हैं उनके बीच में हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, क्योंकि दोनों के दोनों चार्ज कैसे हैं, स्थिर अवस्था में। तो फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको हम कूलॉम के नियम से भी जानते हैं। तो देखिए Q1 की जगह वैल्यू क्या है Q, Q2 की जगह वैल्यू क्या आएगी Q नॉट। तो अगर हमने वैल्यू को पुट करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर एप्सिलॉन R नहीं है। एप्सिलॉन R क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये दोनों के दोनों चार्ज जो है कहाँ रखे हुए हैं, वायु में। वायु के लिए एप्सिलॉन R की जो वैल्यू होती है हमेशा कितनी होती है 1। इसलिए एप्सिलॉन R की जगह क्या रख दी हमने, वैल्यू 1 रख दी थी। तब हमारा फोर्स का फॉर्मूला यह था, बल का फॉर्मूला। अब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, बल बटे टेस्ट चार्ज, फोर्स अपॉन Q नॉट। हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित किया है, तो E बराबर हो जाएगा, यहां पर हम F की वैल्यू को रखेंगे जो कि किसके बराबर है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। और नीचे एक Q नॉट और है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र के अनुसार। तो इस Q नॉट से ये Q नॉट कट जाएगा। तो फॉर्मूला बनेगा, सूत्र बनेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो ये हमारा एक जनरल सूत्र है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का। E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। यहाँ पर Q मौजूद है, Q नॉट नहीं है। मैं आपको बता चुका था Q नॉट वह छोटा सा चार्ज होता है जिस पर के हम प्रभावों को महसूस करते हैं। ये हमारे इसका डेरिवेशन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। I have explained you electric field intensity due to a point charge. Consider charges Q1, Q2, Q3 up to Qn are on a system.
To find the electric field intensity at test charge Q naught, which is placed at point P. So the distance from the charge Q1 to Q naught is R1. Distance from charge Q2 to Q naught R2. The distance from charge Q3 to Q naught is R3, and so on. Distance from charge Qn is Rn. Electric field intensity due to individual charge. So electric field intensity charge Q1 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 upon R1 square. Electric field intensity due to charge Q2. Formula E2 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q2 upon R2 square, and so on. And electric field intensity due to charge Qn, formula En is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Qn upon Rn square. So these electric field intensity calculated individually. Now to find the electric field intensity on system, so we add the total electric field intensity. So total electric field intensity E equal to E1 plus E2 plus E3 and so on up to En. So put the value of E1, put the value of E2, put the value of up to En. So this is the electric field intensity. E is equal to, so there is one thing is common, which is 1 upon 4 pi epsilon naught is common, and Q1, Q2 up to goes to Qn, and distance R1, R2, R3 up to Rn. So what will happen? This is the summation represented by I, limit I from 1 to n. Summation sign we put here I equal to 1 to n, because there is a limit from 1 to n, and the formula will be Qi upon 4 pi epsilon naught Ri square. हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी सिस्टम पर ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक पॉइंट चार्ज के द्वारा ज्ञात की थी, जिसका फॉर्मूला था E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। देखिए कोई एक सिस्टम है जिस पर के चार्ज Q1, Q2, Qn अप टू Qn तक रखे हुए हैं, और हमें टेस्ट चार्ज Q नोट पर तीव्रता ज्ञात करनी है हर चार्ज के द्वारा। तो Q1 से Q नोट की दूरी R1 है, Q2 से Q नोट की दूरी R2 है, Q3 से Q नोट की दूरी R3 है। इसी तरीके से Qn आवेश से Q नोट की दूरी Rn है। टेस्ट चार्ज कहाँ रखा है? P पॉइंट पर रखा हुआ है। तो Q1 के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R स्क्वायर। Q2 आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। इसी तरीके से हम Qn तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो Qn आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता Qn इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन Rn स्क्वायर। तो ये तो हमने अलग अलग आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की। अब हम इस पूरे सिस्टम पर जितने भी चार्ज हैं उनके द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता टेस्ट चार्ज पर मालूम करेंगे। तो सभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को हम जोड़ देंगे, तो हमारे को कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिस्टम पर ज्ञात हो जाएगी। तो उसके लिए सूत्र क्या होगा? E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 एंड so on अप टू कहां तक? En तक। अब हमने इन वैल्यू को पुट कर दिया सभी को, तो इस समीकरण में रखने के बाद हमने ये देखा है कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो सभी में कॉमन आ रहा है डिनोमिनेटर में, लेकिन Q1, Q2, Qn अप टू Qn तक जा रहा है। इसी तरह से R1, R2, Rn तक जा रहा है। तो हमने क्या किया, एक समेशन का यानी सबका जोड़ है, इन सभी को जोड़ेंगे तो एक सूत्र नया बन के आएगा, जिसकी की जो लिमिट होगी हमने एक नया चिन्ह दे दिया आई रख सकते हैं, कुछ भी रखिए आप, ये आपकी मर्जी है। कहां से शुरू हो रही है वैल्यू? 1 से लेकर के n तक। तो नीचे लिमिट लग गई हमारी i इज इक्वल टू 1 से लेकर के कहां तक? n तक। तो देखिए यहाँ पर Q1, Q2, Qn ये बदल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या रखेंगे हम? Qi।
नीचे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो सब में कॉमन है। यहाँ पे क्या बदल रहा है हमारा r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर, यहाँ तक कहाँ तक rn स्क्वायर, तो यहाँ पे रखे हैं हम ri स्क्वायर। इस तरीके से हम किसी भी सिस्टम पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग आवेशों के कारण ज्ञात कर सकते हैं। Remember to subscribe my channel and push the bell icon to stay updated with my uploads. Thank you very much.